ଜନ୍ମରୁ ବିଶେଷ କରି ବରିଷ୍ଠ ରୀତିକ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ଜୟଗୁରୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଏପରି ଏକ ଦିବସ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ରୀତିକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ଅନନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମଧୁଚକ୍ର ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣେଇବି। ଆରମ୍ଭରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ରୀତିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ଗୀତ ଭିତର ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇପରି ଏକ ଭାବକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କ ଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏବଂ ୟା ପରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ପିତୃ ପ୍ରତିମା ବୋଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ। ପିଲାଦିନୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ପୂଜ୍ୟ ପାରଶ୍ୱଦା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି। ବିଶେଷ କରି 7ଟା ବାଜିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସମାହିତ ହୁଏ, ଶେଷରେ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବେ। ଆଜି ଅଛନ୍ତି ହରିହର ପଣ୍ଡାଦା। ଏ ମଧ୍ୟ ସମୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରୁଛି ମୋର ଆଲୋଚନାକୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କଥାଟି କହି ରଖିଥିଲି, ବାସ୍ତବିକ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁବିବାହ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିବାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେଇଛି। ଠାକୁର ଯେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୁଏ, ସେ ହେଉଛି ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନିର ଏକ ଘଟଣା ପ୍ରବାହ, ଯାହା ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷର ନାହିଁ ଆସିଛି ଅନେକ ସମୟରେ। ମୁଁ ବିଗତ 2ଟା ଏପିସୋଡରେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର କରିଛି ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ କଲେ କିପରି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି ଏ ସମାଜ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ସେକ୍ସ ଡିସେନ୍ସି ଇନଭକ୍ସ ଦି ଅର୍ଜ ଟୁ ବ୍ୟୁଟିଫାଇ ଦ ସିଭିଲାଇଜେସନ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଭ୍ୟତାର ପରିକଳ୍ପନା ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ କରାଯାଇ ପାରିବ ଯଦି ସେକ୍ସ ଡିସେନ୍ସି ରୁହେ, ଆଉ ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏ ସୁବିବାହ ଉପରେ। ଗତ ଏପିସୋଡରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି 8 ପ୍ରକାର ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ତା ଭିତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବାହ ହେଉଛି ପ୍ରଜାପତ୍ୟ ବିବାହ। ଭାରତ ବର୍ଷର କତିପୟ ଋଷି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିବା ଏ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପ୍ରଜାପତ୍ୟ ବିବାହ ଭିତରେ ଜଣେ ବର ରହିବ, ଜଣେ କନ୍ୟା ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହବ। ବାସ୍ତବିକ କନ୍ୟା ହିଁ ବିବାହ କରେ, ବିହିତ ଭାବରେ ସିଏ ବହନ କରେ, ପୁରୁଷ ଉଦ୍ବାହ କରେ। ଏଇ ହଉଛି ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ। ଆଉ ସେଥିରେ ଯୋଉ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇ ଉଠେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନାନ୍ଦୀମୁଖୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଲବଣ ଚାମର, ଶିଳା ରୋହଣ, କଉଡ଼ି ଖେଳ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାର୍ମିକ ଉକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସମାଜ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ କରି ତୋଳିବାର ୟାର ଯୋଉ ପଶ୍ଚାତ ପଟରେ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଭାରତୀୟ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଆଜି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଛି। ମୁଁ ଯେ କହିଥିଲି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନୋବେଲ ଲରେଟ୍ ଡକ୍ଟର ଆବ୍ରାହାମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ଆକୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ସେ ଯନ୍ତ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଅସିଲୋଗ୍ରାମ। ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଅର ରକ୍ତ, ଝିଅର ରକ୍ତ କିପରି କରି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥାର 2 ପ୍ରକାର ବିବାହ କଥା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନୁଲୋମ ବିବାହ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁ ଭାବରେ ଅବଗତ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି, ଆମେ ଅନେକ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଠାକୁରଙ୍କର ପରିଭାଷାରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଦେଇ ଗଲି, ତାହା ଯଦି ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ ଭିତରେ ରେତାୟିତ କରି ନ ତୋଳିଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ମତେ ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଗଲ। ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେକ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପରିବାରରେ ଏ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହର ମାନେ ପଦଧ୍ୱନି ହୁଏତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମୌଳିକ ନୀତିବିଧି ଅନୁଶାସନକୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ମାନେ ପରିପାଳନ ନ କରୁଛେ, ମୋର ମନେ ପଡିଛି ଓଡିଶାର ଜଣେ ବର୍ଷିୟାନ ରୀତିକ ଦିନେ କହୁଥିଲେ, ଦରକାର ପଡିଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବିବାହ ନ ଦେଇ ସାରା ଜୀବନ ପାଳନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ବାହାରେ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ ଦେଇ ପାରିବିନି। ସେଇମାନେ ନମସ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ, ଯୋଉମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଠାକୁର ଯୋଉ 7ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ବିବାହରେ, ମୁଁ ଗତ ଥର ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଉ 7ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ବଂଶ ଅଛି, ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ତାର ବାହାରେ ଆଉ ଯୋଉ କଥାଟି এই ବାଣୀ ଭିତରେ ନାହିଁ, ବାଣୀଟି ହଉଛି বিয়ের ব্যাপারে সবার আগে বর্ণর হিসাব করিস, তার সাথে তুই বংশটিকে খুব খতিয়ে দেখিস, বংশ দেখি সদা হলেই শিক্ষা দেখবি কেমনি তার, স্বাস্থ্য দেখবি কেমনি তার,
तार साथे तुई बाजी भी अभ्यास स्वभाव व्यवहार ए सब गुलिर सुसमंजस्य मिलिए जदि जाए शिक्षा देखबी केमनीता केमनता कर्मर ओजनता ये हूँ 7टी मौलिक प्रिंसिपल उपरे जिते भाई मैंने आम शुणुचे अंत नजर पकईकी देखा कारण यहाँ तो बहुत दीर्घव्यापी आलोचना हम ये प्रसंग को लेकर तेरे ये जो 7टी प्रसंग बाहर जो कथाटी उपर जोर देइछन्ती सेटा हूँ बयस बयस उपर बहु आलोचना होइछि आम एपर्यंत गाँ गंडारे एपर्यंत शुणीचे बर 30 कन्या दशा बर को 30 वर्ष हम कन्या को 10 वर्ष हम मु गत एपिसोड रे कहूली 8 वर्ष झील को गौरी कह जाए एठी गौरी पूजा करा परंपरा भारतीय संस्कृति देखा मिले 9 वर्ष झील को रोहिणी कह जाए 10 वर्ष झील को कन्या कह जाए 10 वर्ष ऊर्ध्व हो गले ताकू युवती कह जाए एवं यही सब कन्या मानकर विवाह साधारणतः बयस मध्य निर्धारित करा जाइछि मनुसंहितार अति सुंदर भाव में लिखा जाइछि मनुसंहितार तृतीय पृष्ठा मोर जहाँ मन पड़ुछि बहुत दिन तले पढ़ी तृतीय पृष्ठार वर्णन करा जाइछि जो माने 4 वर्णर नुहंती सेमानकु म्लेच्छ कहा जाए म्लेच्छ को मध्य सेमाने डिफाइन करिसेंती तेबे शिशु ठाकुर म्लेच्छ को जो परिभाषित कले बांचा बाढ़ार उल्टा चले माने म्लेच्छ तादेर बोले से म्लेच्छ कह जाए जो मैंने बंचिया बढ़ियार उल्टा दिगरे जाती आ विवाह व्यवस्था विभ्राट घटिले किपरि जाति मानकर सृष्टि होइछि मु बोधवे ओडिशार प्रत्येक जातिर इतिहास संपर्क में टिके टिके अनुशीलन करिछि अनुध्यान भी करिछि एवं किछि जाति संपर्कित अनेक व्यक्ति विशेष मानकर बा समाजर प्रचलित होइतिबा प्रवर्तित होइतिबा चली आसुतिबा अनेक जाति मानकर इतिहास मध्य मु किछि अनुध्यान करिछि ताकु मध्य लिपिबद्ध करिकि मु रखिछि तेबे आजिर मोर प्रसंगटी मु सीमायित करिवि ए विवाह बयस उपरे तेबे बर 30 कन्या दशा ए कथाटी आमे माने प्रतिपदे के जानिचे आजिकाली पिला मानक जदि कहबो तम भितर बयसर फरक 20 वर्ष रहिबो सब हसिकी उड़ाई देबे कारण मु मोर कॉलेज रे क्लास रे पढ़ेला बेले ए बड़ बड़ झियो मानक देखुची बहुत पिला बाहाई जाउछंती बीकॉम क्लास रे झियो माने 20 21 वर्ष बयस का सब पिला माने तांको मु जेतल पचारजी तो बर के केते वर्ष तोठू बड़ इत्यादि इत्यादि मु जेतेबेले 15 20 वर्ष कथा कहे से माने हसी दियन आ भारत वर्ष एपरी जन पिलार कथा मु कहबी जहाँपरी से भली जन संतान आउ हुए तो भविष्य जन्म नब कि ना संदेह सी हूँ देवयान कृष्ण बा व्यासदेव तांकर बाबा थिले पराशर ऋषि बयस थिला 60 वर्ष सी बाहाई जड़े षोड़शी को विवाह तो करना सहित मिलित हो जो पिला को जन्म देते सी थे सत्यवती सी हूँ कैवर्त कन्या ये जड़े शूद्र सहित ब्राह्मणर मिलन होती जहाँ को आम सहज सरल भाव में कहुपर एक असवर्ण अनुलोम विवाह आ माध्यम बहुत भल भल पिला माने दुनिया को आसी तार अनेक नमूना पुराण पृष्ठार देखा मिले समय स्वल्पतार मुझे दृष्टिकोण को आलोचना करूना आ व्यासदेव पढ़ी संतान बुद्धि पृथ्वी आउ जन्म हे कि ना संदेह मु कहीं भावे गुरु परिवार को छाड़देला कारण से तो होती से नित्य धाम संतान जहाँ परम पूज्यपाद श्री दादा कही बसिले आम से गोटे धाम आसीचु किंतु बाहिक भाव में जब अनुध्यान करा जाए व्यासदेव जे 4 वेद को हूँ तो संकलन करते काली संतोष दा मत कहते वेद को कहीं लिखि ना कथाटा पूरा पूरी ठीक वेद को कहीं लिखि ना भारत वर्षर नवीशारण्य 10 सहस्र ऋषि मान द्वारा अनुभव होता से जहाँ अनुभव आनी मुनि से कहला किसी को ऋषि कहला मुनि माने जो माने थिंकर्स थिले जो माने भाबुथिले बहुत कथा माने भाविचंती ऋषि माने ताकू प्रयोग करिसेंती समाज रे मनीष जीवन रे तांको भितर जहाँ फाइंडिंग्स हला ताकू से माने अनुमोदन करूथिले आ एगुडा मनीष शुणी शुणी करी मन रखुतला वास्तविक लिपिबद्ध ही नहीं वेद वेदर अन्य नाम हूँ श्रुति ये वेद संपर्क कहवाक गले मोर गोटे चमत्कार घटनाटी में मन पड़ जाते जबन मान आक्रमण होती भारत वर्ष को भारतर संस्कृति को अवलुप्त न कले एम जय करी हब ना एक से बोध भितर आसी आपण तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत वर्ष एक प्राचीन विश्वविद्यालय जो हजार हजार संख्यार छात्र मैंने पढ़ुते बर्तमान पाकिस्तान अवस्थित ता भितर से निआ लगे 3 मास धरी से निया अग्नि प्रशमित है ना से समय जो आचार्य मान थे से बड़ चिंतार पड़ गले कहे कौन कले वैदिक सभ्यता को बंचे रखा से छात्र मान डकैले आपको कह जाए उपनिषद गुरु पाखे बसिक जो विद्या से शिक्षा करुले से कह जाए उपनिषद उपनिषद संख्या 108 जन ऋषि मान द्वारा प्रणीत होता नीतिविधि अनुशासन को उपनिषद कह जाउथला
किंतु जेतेबेले जबन मानकर आक्रमण रे भारतीय संस्कृति भूलुंठित होईची तत्कालीन समय आचार्य माने तांकर छात्र मानकु डाकी करी कहले वर्तमान तुम मानकु गुरु दक्षिणा देवार समय आसीगला ना कौन दक्षिणा दबु ना भारत वर्षर वैदिक सभ्यता को लुंठन करी विशेष करी अनेक तो नहीं करी जाइछन तांको देश मानकु आपनकर जो आयुर्वेद एमाने सब नहीं करी जाइछन नादिर सांग ठारू आरंभ करी से माने 200 ऊर्ध्व ओटो बक्ष ओटो पिठी रे लोड करी कि नहीं गले भारतर मौलिक संस्कृति को एते महियान थिला आमानकर विज्ञान एते महियान थिला आमानकर आयुर्वेद एते महियान थिला आमानकर वैदिक सभ्यतार मौलिक मंत्र गुड़िक तेबे से माने जो माने नहीं करी गले ऋषि माने आचार्य माने तांको छात्र मानकु कहले कहले बाबूरे मु जो वेद आमे माने सुनेइबु तमे ताकु सुनी सुनी कि मन रख एटा हिथिला जवन मानकर आक्रमणर परवर्ती घटना तक्षशिला विश्वविद्यालय जेतो अग्नि संयोग सेमान करी पूरा अवलुप्त कर देथिले आउ से जो माने चारि वेद ऊपर प्रतिष्ठित थिले चारि वेद ऊपर दक्षता हासिल कले तांको चतुर्वेदी कुहा गला तीन वेद ऊपर दक्षता हासिल करथिया लोक मानकु त्रिवेदी कुहा गला दुई वेद ऊपर जो माने दक्षता प्रतिपादित करिसिन द्विवेदी कुहा गला खाली सेतिकी नुह जो माने एक वेद को नहीं करी वेद गीता याकू नहीं करी शिक्षा लाभ करथिले तांको वेदी कुहा गला ये होची माने जातिगत विभाजन ला गोटी गोटी छोटिया नमूना तबे आज जो प्रसंग आ 2-3 मिनिट भीतर कोई मोर वक्तव्य सांग करबी कारण ई प्रसंगटा एडे व्यापक दीर्घ दिन धरी आलोचना चलिबो बयस को नहीं करी श्री ठाकुर कहउचंती आयुर्वेद रे उल्लेख अछि स्त्री रो वाइटल पावर इंड्यूस्ड होई वीक पुरुषर वाइटल पॉइंट को बा वाइटल एनर्जी को समतार आनयन करे आउ समवयस्क हेले इक्वाल डेटोरिएशन हुए तेणु ऋषि माने बोध हुए बयसर एते डिफरेंस पक्षपाती नहेले अपुष्ट असुस्थ संतान माने जन्म नियंती मु आउ टिके छोटिया कथा कहबी जोटा कि एते भाई माने बसिचंती निश्चित अनुभव करिवे गोटे नारीर प्रजनन क्षमताटा 45 वर्ष रे बंद हो जाए मन रखिबे केते गुरुत्वपूर्ण कथा ऊपर शिशु ठाकुर प्रसंगटा को रखिचंती अति बेसी आउ 5 वर्ष डिफरेंस आसी पारे किंतु गोटे पुरुषर प्रजनन क्षमता एवं जार जौन निउद्दीपना पाखापाखि 65 वर्ष पर्यंत रुए प्रयोजन क्षेत्र में आउ 5 वर्ष वृद्धि हुए यही तो डिफरेंस हो गला 20 वर्ष तेणु एक सुंदर समाहित जौन व्यवस्था संपूर्ण एक विवाह व्यवस्था को सुंदर करने श्री ठाकुर जोर देइछंती अंतत पक्षे 15 रु 20 वर्ष बयसर फरक रहिबा कथा ठाकुर को पचराई कहले ठाकुर ताले बड़मा आपण बयसर जे 6 वर्ष प्रभेद अनेक लोग प्रश्न करती कहले ठाकुर सिना कहीदेले कारण ठाकुर तो कहते माय लाइफ इज माय मैटेरियलाइज्ड मैगजीन मोर जीवन होची मोर आदर्शर मूर्तिमंत स्वरूप से तो निजे न करिकी किछि कथा कहि ना तबे एठी काहे व्यतिक्रम होला ठाकुर कहले बोध हुए सेतेबेले बड़मा पई उपयुक्त बर नथिले पृथ्वी वक्षरे सहज भाव उत्तर दे देले तेबे आज तो समय होती मो परे अछंती आमर पितृ प्रतिमा पूज्य पार्षदा यही प्रसंग को नहीं करी आगामी दिन में एते शिक्षणीय कथा सब रही ठाकुर जहाँ कहते विवाह विधान ग्रंथ रे एवं यही प्रसंग रे मु कलेक्शन करुच्ची आपण मानकर अवगति निमित्त जड़ाई मते क्षमा करेंगे तेबे आज जो वरिष्ठ रीति मान उपस्थित अच्छा मत व्यक्तिगत भाव में बहुत आनंद दी तेणु समस्त शुभ कल्याण प्रार्थना करी वक्तव्य को सांग कर जय गुरु।